we always do. Namam Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin iti namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottam Saraswati Vyasam Tato Jayam Udirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Vattama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Shri Radha Vrindavan Chandra ki jai, Shri Gaur Nitai ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Welcome back. We will continue to do chapter number 7. The name of the chapter is Knowledge of the Absolute. Bhagavan ke bare mein Gyan. So we've completed 5 shlokas and the ending part of 5th shloka. We read that the Supreme Lord Krishna is the only controller. Parama Ishvara. Ishvara Parama Krishna. Then what about us? We also control so many things. For example, husband controls wife. Of course, wife may also control husband. Parents control children. Teachers control children. So they are also controlling. So they are also Ishwaras. But Krishna is Parameshwara. He is the absolute controller. And that way he is the only controller. And all living entities are controlled by him. So in the whole network, the final control is in the hands of Krishna. Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. He is the cause of all causes. That means the network, जो सूत्र है, जो धारा है, that the final rope, the common rope is with Krishna. And he can pull with one stroke many strings. So while exploiting the gross and subtle inferior energy, the superior energy forgets his real spiritual mind and intelligence. जो जीव है, जो कृष्णा का उन्नत शक्ति है, वो माया के वश में आके भौतिक जगत मतलब नैसर्गिक कंट्रोल में आ जाता है. That means a lesser force is controlling a higher force, which is a very unfortunate situation. It's like a donkey, dragging the master wherever it wants to go. Whereas the donkey should be led. This forgetfulness is due to the influence of matter upon living entity. Krishna Buliya Jiva Bhoga Vancha Kare पाशाते माया झपटी अदरे. तो हम माया के वश में कैसे आ गए और हम भौतिक प्रकृति के शक्ति से भी अगर शक्तिशाली है तो उनके वश में हम कैसे आ गए. इट हैपेंड बिकॉज कृष्ण बोलिया जीवा कृष्ण को भूल गए. लाइक वी ऑल फॉरगॉट कृष्णा. व्हाई वी फॉरगॉट? भोग वांछा करे. बिकॉज we wanted to enjoy ourselves independently, not in the company of Krishna. तो थोड़ा ईर्षा कृष्णा के ऊपर हम सबको आ गया जब आध्यात्मिक जगत में थे. तो आध्यात्मिक जगत में ईर्षा का कोई जगह नहीं है. सो पाशाते माया झपटी दरे. तो माया के लिए ये छूट है, तुरंत वो हमें घसीट के भौतिक जगत में लेके आके डाल देगी. So that is the loophole that is there, which Maya can exploit and bring the jiva to the material world.
But when the living entity becomes free from influence of the illusory material energy, he attains the stage called mukti. तो मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति हित्वान्यता अन्यता रूपा. सो स्वरूपेण व्यवस्थिति. तो मुक्ति का मतलब है हम अपने असली स्वरूप में वापस फिर से आ जाएंगे. और हमारा असली स्वरूप क्या है? What is our eternal identity? That is जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास. कृष्णेर नित्य दास. हम सब सनातन काल के एक्चुअली कृष्ण के दास हैं. बट हम अपने इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमने सोचा कृष्ण के बिना. तो Maya got the loophole and she dragged us into this material world. So Gita confirms the living entity to be only one of the multi energies of Krishna. तो जीव, हम सब जो जीव है, हम भी कृष्णा के ही शक्ति है. हमारा शक्ति इट इज नॉट इंडिपेंडेंट शक्ति. ये शक्ति का स्रोत, द आधार, द सोर्स इज कृष्णा. एंड व्हेन दिस एनर्जी इज फ्रीड फ्रॉम मटेरियल कंटामिनेशन, और जब हम इस शक्ति को माया के कलुषित, माया से जो कलुषित हुआ है, इस शक्ति को हम जब फ्री कर देंगे, मतलब स्वतंत्र कर देंगे, इट बिकम्स फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस और लिबरेटेड. तो जब हम बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियस बनना चाहिए, तो बनने के लिए कुछ नहीं है, बिकॉज हमारे डिफॉल्ट सेटिंग है वी आर कृष्णा कॉन्शियस. लेकिन बहुत सारे कलमश और धूल मिट्टी कवर कर गया है हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत हमारे स्थिति को. और जब हम इस सारे मैल को हटा देंगे, तो हमें अपना असली स्वरूप, स्वरूपेण व्यवस्थिति. तो दिस प्रोसेस, द भक्ति प्रोसेस इज टेकिंग अस बैक टू द ओरिजिनल कॉन्शियसनेस दैट इज डिफॉल्ट टेंडेंसी ऑफ ऑल ऑफ अस. जो हम डिफॉल्ट से हैं, उस टेंडेंसी तक हमें ले जाना, मतलब टू अनकवर व्हाट इज कवर्ड, दैट इज भक्ति. एंड हाउ डू वी अनकवर? इस माइल को कैसे नहीं उठाएंगे? तो चेतो दर्पण मार्जनम. तो हमारे मन को, हमारे सोच को साफ करने से, और हमारे सोच और हमारे मन, हमारे बुद्धि, अहंकार को कैसे हम और अल्टीमेटली हमारे जीवन को हम कैसे शुद्धिकरण करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो आप लोग सोच रहे होंगे प्रभु तो घूम फिर के उसी टॉपिक पे आते हैं, हरे कृष्णा मंत्र का. मैं घूम फिर के नहीं आ रहा हूं, हम घूम फिर रहे हैं. वी आर कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, एंड इट इज पॉसिबल बाय चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा mantra. So, and we all have the abilities, different abilities, and the abilities is like a gift. So we must first acknowledge this. So how to become pure, shuddha kaise bane? We must understand that everything that I have got is actually a gift from the Lord. It is an endowment, it's not an entitlement. मैं बुद्धिमान हूं, मैं अपने मतलब बलबूते पे बुद्धिमान हूं. It has been God given, and we must acknowledge that, and we must use that for the service of the Lord. So to have ability is a gift. क्षमता रखना एक उपहार है भगवान का. To realize that we have ability is a greater gift. और इसको जान लेना कि हमारा जो ability है, क्षमता है, हमारे अंदर है, ये उससे ज्यादा गिफ्ट है. But to realize that our ability is a gift from the Lord is the greatest gift. लेकिन ये उपहार सोने पे सुहागा कब बनेगा? जब हम जान लेंगे कि ये जो उपहार है ये भगवान की देन है, और भगवान की देन को मुझे बहुत ही सावधानी से मुझे उपयोग करना है. And I have to use it in His service only. So many people say, Prabhu, we are all, this body is an illusion. ये देह ही एक illusion है. Body is not an illusion. हम सब महसूस कर रहे हैं कि हम सब के body हैं. So then
it is not the body which is the illusion. We are not we are not illusion. We are in illusion. That we are in this material world is not illusion. That we are having a human body is not illusion. Some other jiva is having dog's body, cat's body. It is not illusion. But the body is not illusion. But to think that I am this body, that is illusion. So we are in illusion. We are not illusion. So God is the ultimate source and the ultimate resource. तो भगवान जो है, तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं ये इस टॉपिक है कि हाउ लॉर्ड इज बोथ द सोर्स एंड रिसोर्स. वो स्रोत भी है और आधार भी है, आधार स्तंभ है हम सबका अस्तित्व के लिए. सो विल मूव ऑन टू श्लोका नंबर 6. So shloka number 6 talks about how सर्वम कृष्णमया. तो यहां से 12वें श्लोक तक हम पढ़ते जाएंगे कैसे सब कुछ का आधार और स्रोत कृष्ण भगवान है. That means to say that how easy it is to remember Krishna at every step of our lives, and how to do that Krishna is telling. कृष्णा हमें उपाय बता रहे कि कैसे हम हमेशा कृष्णा के बारे में सोच सकते हैं. How we can always remember about Krishna, because in the first shloka he said मयि आसक्ता मना पार्था योगम युञ्जम मदाश्रया. तो he is telling मेरे आश्रय में आओ और मेरे ऊपर आसक्ति बढ़ाओ और मेरे ऊपर मन लगाओ. कैसे लगाना है, कैसे हम भगवान के बारे में हमेशा सोच सकते हैं. That trick now Krishna is telling, how to see Krishna everywhere and what Krishna is, how he is around us everywhere. So we'll read etad yonini bhutani sarvani iti upadaraya aham krishnasya jagatah prabhava pralayastata. तो पहले क्लू भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं. क्या क्लू दे रहे हैं? Of all that is material and all that is spiritual in this world, जो भी भौतिक वस्तु है, चीजें हैं, जो भी आध्यात्मिक वस्तु या चीज है, जो भी आप भौतिक कहलाते हैं, जो भी आप आध्यात्मिक कहलाते हैं, जो भी जगत में हमें महसूस हो रहा है, नो फॉर सर्टेन, तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए. अर्जुन को बता रहे and directly is telling us that I am both its origin and dissolution. तो मैं उसका प्रभव, मैं उसका स्रोत हूँ, मैं उसका जननी हूँ, जनक हूँ, और मैं ही उसका नाश करता हूँ. प्रलयस तथा. तो एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय. भौतिक चीजें और आध्यात्मिक चीजें सर्वाणि इति उपधारय, मेरे से आ रहा है, मेरे आधार, मैं आधार स्तंभ हूँ. अहम कृष्णस्य जगतः, मैं हर जगह हूं, आप मुझे हर जगह पा सकते हैं. फिर मुझसे ही सब कुछ आ रहा है. प्रभव, मुझसे ही सब कुछ मिट जाएगा. प्रलयस तथा, ऐसे. सो फर्स्ट थिंग वी हैव अंडरस्टूड इज कृष्णा इज एवरीवेयर. कृष्णा is the cause of everything manifesting and also dissolving, disappearing. So everything that exists is a product of matter and spirit. तो जो भी हम देख पाते हैं वो भौतिक और आध्यात्मिक का सम्मिलन से हो रहा है. Spirit is the basic field of creation and matter is created by spirit. जैसे कि कल मैं बता रहा था, जब हम बिल्डिंग देखते हैं, बिल्डिंग तो भौतिक वस्तु है, भौतिक चीजों से बना है. कैसे बना? एक शक्ति से बना, एक बहुत सारी शक्तियां मिलके बने. क्या है? जीव सारे शक्ति है. और कोई जीव ने प्लान किया, आर्किटेक्चर किया, कोई जीव ने पैसे दिया, कोई जीव ने हाथ बटाया, मतलब सीमेंट मिक्स किया और बिल्डिंग को खड़े किया. अपने आप तो बिल्डिंग नहीं आया. So it is the combination of spirit and material things.
So spirit is not created at a certain stage of material development. तो जो भौतिक विज्ञानी कुछ साल पहले बोलते थे कि रसायन से जीव का सृष्टि होता है, life comes from chemicals. So that has been proved by scientists itself in the modern world that it is wrong. Life comes from life. Life does not come from materials. तो ये एक बुक भी है which is a conversation between Srila Prabhupada and his scientist disciple T.D. Singh, जो बाद में स्वरूप दामोदर दास के नाम पे बने, और उन्होंने प्रभुपाद के मार्गदर्शन से एक साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी खोला और उसमें लगातार आध्यात्मिक और भौतिक रिसर्च होता रहा, एंड इट यूज्ड टू बी पब्लिश्ड इन बैक टू गॉडेड मैगजीन. So they have categorically proven that life comes from life. The whole book is of the discussion of how Prabhupada refutes that life comes from material things, life comes from life, he proves it. So this material body is developed because spirit is present within matter. तो जीव का उत्पत्ति ये जो देह बढ़ कैसे रहा है, ग्रोथ कैसे हो रहा है, तो फिर हम मतलब बच्चों को कैसे प्रोड्यूस कर सकते, क्योंकि हम एक जीव शक्ति है इस देह के अंदर. ये जीव शक्ति चला जाएगा बाहर तो इस देह को मृत देह बोलेंगे, डेड बॉडी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग बॉडी एंड डेड बॉडी? वन हैज सोल, another soul is absent. When the soul goes away, it's called dead body. तो उस बॉडी को आप किक करो, फुटबॉल खेलो उससे, तो आपके लिए प्रोटेस्ट नहीं करेगा. लेकिन जब जीव है, उंगली भी उठाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा. तो why? Because there is a jiva there, and the jiva is thinking that I am this body. So a child grows gradually to boyhood, then to manhood, and because of that superior energy, spirit soul being present. तो आत्मा के वजह से इस देह का जो बढ़ावा हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, वो आत्मा की वजह से हो रहा है. इट इज नॉट हैपनिंग, इट इज नॉट रिवर्स. क्योंकि ये देह बढ़ रहा है, आत्मा का भी विस्तार हो रहा है. दैट इज नॉट द वे इट इज. Similarly, the entire cosmic manifestation of gigantic universe is developed because of the presence of super soul. तो ठीक वैसे ही ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए परमात्मा, गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु, हर जीव के हृदय के अंदर, हर अणु के अंदर प्रवेश कर गए परमात्मा के स्वरूप लेके. तो उसी की वजह से सब कुछ टिका है, आधार है, उपधार है यहाँ. तो कृष्णा आधार है सबका. Therefore, spirit and matter, which combine together to manifest the gigantic universal form, are originally two energies of the Lord, and consequently the Lord is the original cause of everything. तो जो भौतिक शक्ति है और आध्यात्मिक शक्ति है, तो राधा रानी आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक शक्ति माया देवी, और भौतिक चीजें सब कुछ कृष्ण भगवान से ही आ रहा है. He is the final source of everything, is also the final destination of everything. आया है कृष्णा से, प्रभव बाद में वापस भी जाएंगे कृष्णा के पास, कृष्णा के अंदर सम्मिलित हो जाएंगे. बट सम्मिलित हो जाएंगे मतलब not that we get dissolved and lose our identity. Either we regain our spiritual identity, or after some time again material creation happens, and if our karma is not over, we'll come back into this material world. So, and Krishna is the original cause of everything. हर चीज का आधार स्तंभ स्रोत भगवान कृष्ण है. The cause of the universe is the super soul, Krishna, the supreme creator of all individuals. तो ये जगत ब्रह्मांड भी कृष्णा के वजह से ही उत्पन्न हुआ है. And as the Katha Upanishad confirms, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम. तो हम भी नित्य हैं और भगवान भी नित्य है. बोथ आर एटर्नल. भगवान नित्य और हम नित्यानाम, अनेक नित्य आत्मा. क्या? चेतनस चेतनानाम. भगवान भी एक चेतना है, सुप्रीम चेतना, और हम सब चेतनानाम, अनेक चेतना हम सब हैं. लेकिन सब कहां से आ रहे हैं?
भगवान से आ रहे हैं, मतलब वी आर सोर्स्ड बाय सुप्रीम लॉर्ड, वी आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. So we'll move ahead and take in the next shloka. So it's a continuation of what Krishna is speaking. Krishna has started giving us the clue of how we can attune ourselves into seeing God everywhere. And what is the process of doing that? With knowledge. Mattaha parataram nanyat kinchidasti dhananjaya मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव. So Krishna is again telling, मयि सर्वम इदम प्रोतम, everything rests upon me. मत्त परतरम न अन्यत, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, सब मेरे शक्ति ही है. मेरे अलावा मतलब सारे विस्तार कृष्णा का ही शक्ति है. So Krishna is telling, O conqueror of wealth Arjuna, हे धनंजया, आपने भौतिक धन को पा लिया, अब आध्यात्मिक धन को पाइए. वेरी स्ट्रेटेजिकली यूजेस दिस वर्ड धनंजया. देयर इज नो ट्रूथ सुपीरियर टू मी. मत्त परतरम न अन्यत्, मत्त पर इतर न अन्यत्. तो मुझसे पर कुछ है ही नहीं, मुझसे परे कुछ है ही नहीं, मुझसे ऊपर कुछ है ही नहीं, मुझसे सम कुछ है ही नहीं. सो कृष्णा इज टेलिंग ही इज असम ऊर्ध्व. तो वेद शास्त्र भी हमें सिखाता है कि कृष्णा भगवान असम ऊर्ध्व, उनके समान कोई नहीं है और उनसे ऊपर और है कोई नहीं. देन कृष्णा टेल्स एवरीथिंग रेस्ट्स अपॉन मी, मयि सर्वम इदम प्रोतम. तो मेरे ऊपर ही सब टिका है, मैं ही आधार हूं सबका. कैसे कैसे मैं आधार हूं? एज पर्ल्स आर स्ट्रंग ऑन अ थ्रेड, जैसे मणि मोती को एक माला बनाते हैं धागे के सहारे से, तो धागे के सहारे से सारे मोती कड़े हैं और एक सुंदर सा माला बन गया. तो सारे क्रिएशन क्या है? मोतियों का एक माला है. और ये सुंदर माला बना कैसे? आधार क्या है? क्या जोड़ रहा है इन सबको? एक धागा जोड़ रहा है. और कौन है वो धागा? भगवान श्री कृष्ण है. मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इवा. सूत्र मैं हूं, धार जो धागा है मैं हूं. मैं कठपुतली की तरह सब कुछ, मतलब कठपुतलियों को मैं नचा रहा हूं. सूत्रे मणिगणा इवा. सो देयर इज अ कॉमन कंट्रोवर्सी ओवर whether the supreme absolute truth is personal or impersonal. तो भगवान निराकार है या साकार है, सुगुण है या निर्गुण है. As far as भगवत गीता is concerned, तो भगवत गीता जो भगवान का ही, मतलब भगवान से मिला हुआ ज्ञान है, उसके बारे में वो खुद बता रहे. So which is a better source? Where can I get a better source of knowing God? God himself is telling about himself in Bhagavad Gita. So why do I have to look anywhere else? So absolute truth is personality of Godhead Shri Krishna. Krishna is starting to reveal himself. Krishna is telling, I am that Lord. मैं ही वो भगवान हूं. सूत्रे मणिगण इवा मत्त परतर न अन्यत. सो इट इज स्ट्रेस्ड दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ इज अ पर्सन. तो यहाँ पे हमें कृष्ण बार बार बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान एक व्यक्ति है. द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, इज आल्सो द अफर्मेशन ऑफ ब्रह्म संहिता. और ये ब्रह्मा जी भी अपने प्रेयर्स, ब्रह्म संहिता प्रेयर्स में बताते हैं, ईश्वरा परमा कृष्णा. तो परमेश्वर कृष्णा है और ये परमेश्वर कृष्णा निराकार है या आकार है इनका. तो सच्चित आनंद विग्रह, तो उनका कुछ एट्रीब्यूट्स है, क्वालिटीज है. क्या क्वालिटी है? सत चित आनंद विग्रह. विग्रह का मतलब क्या है? कुछ आकार है. तो श्याम सुंदर उनकी आकार. कुछ लोगों के बाद भगवान ब्रह्मा निरूपित करते हैं कि कृष्ण का असली स्वरूप श्याम सुंदर स्वरूप है. द्विभुज मुरलीधर त्रिभंगी कृष्ण भगवान, मोर पंख वाले, वेणु कणंतम अरविंद दड़ायताक्षम. उनके आंखें अरविंद की दड़ा, मतलब लोटस फ्लावर के पेटल जैसा है.
बरहावतमसम, तो अपने सर के ऊपर मोर पंख है उनके। सी, डिस्क्रिप्शन ऑफ गॉड इज गिवन, सो वेयर इज द स्कोप फॉर एनी कंफ्यूजन? भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कौन है, भगवान का आकार है कि नहीं? तो एंड बार बार ब्रह्मा जी बोल रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, तो सर्व कारण कारणम, देन चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष, गोलोक वृंदावन का क्या विश्लेषण या डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ब्रह्मा। देन नेक्स्ट श्लोक में बता रहे कृष्ण के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान कैसे हैं, कैसे दिखते हैं? वेणु कणंतम, हाथ में वेणु है, अरविंद दलायताक्षम, आंखें सुंदर लोटस पेटल जैसा, और बरहावतमसम, सर के ऊपर मोर पंख है, असितम बुधा, असिता, सीता, सीता मतलब श्वेत वर्ण, प्योर, तो श्वेत वर्ण, असिता, असिता मतलब ऑपोजिट ब्लैक, श्याम वर्ण के हैं, अम्बुद सुंदरांगम, श्याम वर्ण के हैं लेकिन इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, सागर जैसे सुंदर है, और सागर का जो लय है उसका कोई अंत नहीं है। ठीक वैसे ही भगवान के सौंदर्य का कोई अंत है ही नहीं, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और सुंदर और सुंदर। असित अम्बुद सुंदरांगम, सुंदर अंगम, अंगा मतलब उनके सारे लिम्स, बॉडी पार्ट्स है, बट इट्स नॉट मटेरियल, इट इज स्पिरिचुअल। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, और कितने सुंदर है, इतने सुंदर है कि कंदर्प जो गॉड ऑफ लव, कामदेव, सबसे सुंदर देवता कामदेव है, उसको रहना ही है सब सुंदर, सबसे सुंदर। उनकी पत्नी रति देवी, अट्रैक्शन करने वाली। तो ऐसे कंदर्प कोटि साथ में आ जाएंगे, उन सबका कांति मिल जाएगा, उन सबका सौंदर्य मिल जाएगा, कमनीय, तो वो भी कम पड़ जाएगा इस भगवान के सौंदर्य के सामने। असितंबुद सुंदरांगम, कंदर्प कोट कमनीय विशेष शोभम, उनका शोभ का क्या कहना, विशेष शोभ है। तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, फिर ब्रह्मा बोल रहे गोविंदा है ये आदि पुरुष है, तमहम भजामि, उनके शरण में मैं जा रहा हूं। So where is the question of doubt? And the Veda Shastras are revealing even how Lord looks like. So these authorities leave no doubt that absolute truth is the supreme person, the cause of all causes. And in Shvetashvatara Upanishad it is mentioned, Tato yad uttarataram tad arupam anamayam yayetat vidur amrutas te bhavanti atetare dukkam evapi yanti. What is this shloka telling? In the material world, Brahma, the primeval living entity within the universe, तो ब्रह्मा सबसे पहला जीव है, तो ब्रह्मा भी एक जीव है, बट ही इज द मोस्ट क्वालिफाइड जीवा, मतलब बहुत क्वालिफिकेशन मिल गया तो सरपंच बनेंगे, और क्वालिफिकेशन मिल गया तो कलेक्टर बनेंगे, और क्वालिफिकेशन मिल गया तो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और क्वालिफाइड हो जाएंगे और शक्तिशाली हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, यूनाइटेड नेशंस का प्रेसिडेंट। ब्रह्मांड का प्रेसिडेंट कौन है? हमारे एक ब्रह्मांड का प्रेसिडेंट है ब्रह्मदेव, चतुर्मुख ब्रह्मा, लेकिन वो कौन है? वो भी एक जीव है, वो अपने क्वालिफिकेशन की वजह से वो ब्रह्मा बन चुका है। तो अगले क्रिएशन में कोई और ब्रह्मा बनेगा, वही ब्रह्मा नहीं बनेंगे। और इस ब्रह्मा का क्या होगा? बिकॉज ही हैज रीच्ड द हाईएस्ट स्टेज, वो प्योर डिवोटी अपने स्वरूप में आ जाते हैं, निज स्वरूप में आ जाते हैं, आध्यात्मिक स्वरूप में, और वापस वो गोलोक चले जाते हैं, और अगले सृष्टि में फिर एक क्वालिफाइड पर्सन ब्रह्मा बन जाएगा। और ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा है, एक ब्रह्मा नहीं है। हमारे जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मा का चतुर्मुख है, सो फोर हेडेड ब्रह्मा, हाउ इंटेलिजेंट ही मस्ट बी, बट दिस ब्रह्मा इज द लीस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल ब्रह्मास। तो जो हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा है, मोस्ट इंटेलिजेंट जीव है हमारे ब्रह्मांड का, लेकिन इज द लीस्ट इंटेलिजेंट ब्रह्मा।
मतलब 10 सर वाले ब्रह्मा हैं और कोई ब्रह्मांड में 100 सर वाले ब्रह्मा है, लाख सर वाले ब्रह्मा है, कोटि सर वाले ब्रह्मा है। और ये सब ब्रह्म विमोहना लीला, जब ये लीला हुआ, जब ब्रह्मा जी ने कृष्णा को टेस्ट करने की कोशिश किया और सारे गोपाल और गोवंश को उठा के लेके चले गए, फिर कृष्णा ने सब बालक बन के और गो बन के, गोवत्स बन के विस्तार कर लिए 1 साल तक। ब्रह्मा भी विमोहित हो गए, अरे ये क्या, मैंने सबको छुपाया है और यहाँ पे ये लोग हैं गो वृंदावन में। फिर वो आए नीचे और कृष्णा से माफी मांगे। और फिर जब द्वारका में थे कृष्ण भगवान, तब एक बार ब्रह्मा जी आए, तो ब्रह्मा जी द्वारपालक को बोले, आप जाके बताइए कि ब्रह्मा जी आए हैं, तो आप उनकी मतलब अनुमति लेके आइए मुझे प्रवेश करने के लिए। तो ठीक है, जो चौकीदार था द्वारका का, वो अंदर गया कृष्ण भगवान के पास, आपको देखने ब्रह्मदेव आए हैं। तो उनको पता था कि ब्रह्मा का वो बहुत घमंड हो रहा है कि वो आ पा रहा है डायरेक्टली कृष्णा को देखने के लिए। तो उसने द्वारपाल को पूछा, कृष्ण भगवान ने, उनसे जाके पूछिए कौन सा ब्रह्मा आया है। अच्छा ठीक है, तो चौकीदार आया, कृष्ण भगवान जी पूछ रहे कि कौन सा ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जी बोलते, कौन सा ब्रह्मा का मतलब क्या है, मैं तो एक ही ब्रह्मा हूं, इस ब्रह्मांड का तो एक ही ब्रह्मा हूं मैं। उनको बोले चतुर्मुख ब्रह्मा है। तो ये भी घमंड से बोला उन्होंने। तो फिर उन्होंने देखा कि कृष्णा बाहर आके उन्होंने, अच्छा चतुर्मुख ब्रह्मा जी, 1 मिनट, ब्रह्मा सारे ब्रह्माओं का सभा मैंने बुलाया है बोल के वो इशारा करते हैं। तो 10 सर वाले, लाख सर वाले, करोड़ सर वाले ब्रह्मा आ रहे हैं। तो ब्रह्मा देख रहा है, विमोहित हो रहा है। वो सोचो, वो मतलब उनको अपने ऊपर घिन्न फील हो रहा है कि मैं क्या अपने आप को क्या सोच रहा था, और मेरा तो बहुत ही कम सर वाला ब्रह्मा हूं मैं, मुझसे बड़े बड़े ब्रह्मा हैं यहाँ पे। बट यस, ब्रह्मा देन बिकम्स अ प्योर। तो क्या कोई अगर क्वालिफाइड नहीं है तो कौन ब्रह्मा बनता है? अगर कोई क्वालिफाइड है ही नहीं है तो ब्रह्मा कौन बनेगा? तो उस मनवंतर में या उस सृष्टि में कृष्ण भगवान स्वयं ब्रह्मा बन जाते हैं। तो कभी कभी कृष्णा ही ब्रह्मा बन के आ जाते हैं। So anyone who can know him also becomes transcendental, but those who do not know him suffer the miseries of the material world. जो कृष्णा को जान जाते हैं, वो आध्यात्मिक शक्ति पा लेते हैं। कृष्णा को कैसे जानेंगे? भगवद गीता पढ़ने से, हरे कृष्ण मंत्र जपा करने से। और जो नहीं कर रहा है वो अज्ञानी है, तो वो भौतिक जगत में ही रहेगा और भौतिक जगत का जो मार लात है खाते खाते वो इसी संसार के चक्रव्यूह में फंसा रहेगा। So beyond Brahma there is transcendence who has no material form and is free from all material contamination. So ब्रह्मा से भी ऊपर भगवान श्री कृष्ण है। So in Shvetashvatara Upanishad again it is mentioned, Vedaham etam purusham महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विद्वान अमृत इह भवति न अन्य पंथा विद्यते अयनाय यस्मात् परम न अपरम अस्ति किंचित यस्मान्नान्यो न जायो अस्ति किंचित। तो इसका संक्षिप्त में क्या, व्हाट इज द मीनिंग? So Krishna, I mean, the Shvetashvatara Upanishad में दिया है, there is no truth superior to the supreme person. वेदाम एतम पुरुषम महांतम, ये जो पुरुष है कृष्णा है, उससे महान और कोई है नहीं। तो कृष्णा, और इस श्लोक में कृष्णा भी बता रहे मत्त परतरम नान्यत। तो सेम थिंग्स आर बीइंग टोल्ड। Then he is telling only he who knows him can transcend the bonds of birth and death. जो भगवान को जानता है वही इस भौतिक सृष्टि से छुटकारा पा सकते हैं। जनन मरण के चक्रव्यूह से वो बाहर जा सकता है।
There's no way for liberation other than this knowledge of that supreme person. तो भगवान को जाने बिना, इस विद्या के बिना, और ये विद्या हमारे हमारे अंदर मतलब बखूबी कैसे बैठेगा, जब हमारे मन को हम शुद्ध कर देंगे। और मन को शुद्ध करने का एकमात्र उपाय कलयुग में क्या है, आप सबको पता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So Krishna is telling there's no truth superior to that supreme person because he is supermost. मत्त परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय। छोटा सा छोटा चीज भी नहीं है भगवान को छोड़ के। He is smaller than the smallest. अणोरणीयान. He is greater than the greatest. महतो महीयान. He is situated as a silent tree and he remains the transcendental sky. And as a tree spreads its roots, he spreads its extensive energies. जैसे पेड़ अपना बेर को, अपने शाखा को बढ़ाता है, वैसे कृष्णा भी एक स्थित होके अपने विस्तार कर रहे हैं। From these verses one concludes that the supreme absolute truth is the supreme personality of Godhead, who is all pervading. Sutre Manigana Iva Mai Sarvam Idam Protam, and by his multi energies both material and spiritual things exist. तो उनके अनेक शक्तियां हैं, हम भी उनके एक शक्ति है, तो ऐसे अनेक शक्तियां हैं उनके, और इसके आधार पे ये सृष्टि बना है। So we'll just go on and touch shloka number 8 and purport we'll do next time. So Krishna is telling here, Rasoham apsu kaunteya प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्व वेदेषु शब्द के पौरुषम ऋषु। फिर मैं कहाँ आप मुझे कहाँ महसूस कर सकते हैं, हाउ यू कैन रिमेम्बर मी। वो सन ऑफ कुंती अर्जुना कौंतेय, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, रसोहम अप्सु, जो पानी का स्वाद है वो मैं हूँ। साइंस हैज थॉट टिल नाउ दैट वाटर इज टेस्टलेस, बट टुडे इट अग्रीज दैट यस वाटर हैज a taste which is unique to the taste of water. सिर्फ पानी का ये टेस्ट होता है। और कृष्णा ने millions of years ago is telling रसा अहम अपसु, मतलब पानी का जो रस है, पानी का जो स्वाद है वो मैं हूँ। Then light of the sun and moon प्रभास्मि शशि सूर्ययो, तो अगली बार सूर्य भगवान चंद्र को देखेंगे। सूर्य पूजा क्यों होता है, चंद्र पूजा क्यों होता है, चंद्र की वजह से नहीं, सूर्य की वजह से नहीं, उनका जो कांति है वो कृष्ण भगवान से आ रहा है। तो when we are worshipping sun god, we are worshipping the energy of the Lord, because the energy of sun or moon is coming from Krishna. Then pranama sarva vedeshu, syllable ओम इन वैदिक मंत्र, हर जगह ओम 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 जो हम सुनते हैं, कौन है ये ओम, वो ओम है भगवान। ओम नमः शिवाय, तो शिव जी भी उस भगवान के चरण में है। So like that, so this word Om is there in all the pranam mantras. And I am the sound in ether, शब्द के ability in man, पौरुषम ऋषु, जो भी आप मानव के अंदर क्षमता देखते हैं, वो क्षमता कहाँ से आ रहा है, abilities कहाँ से आ रहा है, भगवान श्री कृष्णा से। So with this, we will stop here. We have run out of our 40 minutes time. It's a good thing that we're not able to understand 40 minutes are going. That means the going is good. We'll meet again tomorrow with the continuation of knowing how we can see Krishna everywhere. Thank you for joining me. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.